जैसे हमने आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। ओके। तो आईयूपीएसी सिस्टम में जो जो रूल्स है इसके बारे में भी पढ़ा है, लेकिन कल मैंने जो टेस्ट ली थी तो सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज। दे आर नॉट अवेयर अबाउट हाउ टू गिव द IUPAC names to the organic compounds. That's why listen this video carefully, watch this video carefully. अभी मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जैसे कि हमारे एनडीए एसएसबी इंटरव्यू में भी एक टास्क होता है हमारे लिए। क्या टास्क होता है? यू हैव टू वॉच द वीडियो फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर बेस्ड ऑन इट। तो उसी तरह से आज जो है ये 3 मिनट का वीडियो आपको देखना है कॉन्सेंट्रेटली। सभी रूल्स अच्छी तरह से देखना है और इसके अगेंस्ट जो है 10 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है, प्रिपेयर रहना है। What are the rules for naming carbon compounds? The carbon element is different from other elements in nature as it can form large compounds. Most of the living and non-living things are made from carbon compounds. For example, our body and the DNA molecule are made from carbon compounds. Let's learn about the nature of carbon compounds. Carbon atoms come together to form large molecules. This unique property of carbon is due to its ability to form covalent bonds. This ability of carbon to form covalent bonds with other carbon atoms is known as catenation. This catenation enables carbon to form strong and stable covalent bonds with open or closed chains of carbon atoms. There are millions of such carbon compounds that are known today. In the past, scientists knew only a few carbon compounds such as methane, ethane, propane, and butane. These alkanes were further named based on the number of carbon atoms in them. For example, in the molecular formula C4H10, there can be two structural formula having a straight chain or branched chain. This difference and their interrelationship between the two formulae was indicated by naming them as N-butane, normal butane, and I-butane, isobutane. अब यहाँ पे देखिए ब्यूटेन आइसोमरिज्म, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। द ब्यूटेन, अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स है ब्यूटेन के। तो दोनों स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि दोज आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द डिफरेंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज इनके अलग अलग है एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोमर। जहाँ पे स्ट्रेट चेन है इसे हम कहते हैं एन ब्यूटेन, और जहाँ पे ब्रांच चेन है इसे हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। However, with time, this naming nomenclature became complicated. अब देखो जैसे जैसे एन ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 है, हेक्सेन में 6, हेप्टेन कंटेन 7। इन दिस वे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, सिमिलरली देयर पॉसिबल स्ट्रक्चर और आल्सो इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गिव द नेम्स टू दैट कंपाउंड एंड टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके पॉसिबल स्ट्रक्चर भी बढ़ते जाएंगे। पॉसिबल स्ट्रक्चर बढ़ेंगे तो उनके नाम भी अलग होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर अलग अलग है तो उसका फंक्शन भी अलग होता है। इसकी वजह से उनके नाम में बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, देन द स्टेप्स it has been taken, the union it has been established. The name is International Union of Pure and Applied Chemists, and he makes some rules for giving the names to the carbon compounds and hydrogens and organic compounds. To address this need for standardization of the naming of carbon compounds, IUPAC, or International Union of Pure and Applied Chemistry, put forth a nomenclature system based on the structure of the compounds. This system has a provision for providing a unique name to each carbon compound. The steps in the IUPAC nomenclature system for naming straight chain compounds are as follows.
First, draw the structural formula of the straight chain compound. Then count the number of carbon atoms in it as shown. जब कहीं भी आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नेम फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आता है तो पहले जो है इस तरह से हमें उसका स्ट्रक्चर निकालना है, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स एक दूसरे को अटैच है, इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे इट विल बी इजी टू फाइंड आउट द नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। Now let us see how some straight chain compounds containing one functional group are given IUPAC names and their common names. The IUPAC name of any carbon compound has three parts: parent, suffix, and prefix. The name of the carbon compound is constructed by using appropriate suffix and prefix to the name of the parent alkane. For example, chloroethane, where ethane is the parent and the prefix is chloro. In case the carbon chain of the concerned compound contains a double bond, the ending of the parent name will be -ene. For instance, यहाँ पे याद रखना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एंडिंग नेम हमारा ANE। If there are the double bond between the carbon atoms, the ending name will be ENE, and if there are triple covalent bond between the two carbon atom, ending name is YNE। ये बात भी याद रखना है, the carbon can forms the covalent bond with other carbon atom, always it forms the covalent bond। alkene. If the carbon chain in the concerned compound contains a triple bond, the ending of the parent name will be -ine. Let us do a quick recap of the important points learnt in the video. तो ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। The compound that contain the carbon is known as carbon compound. It has some exception also. सभी कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड नहीं होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है लेकिन दैट आर नॉट द कार्बन कंपाउंड। With a few exception, all the compounds that contain the carbon are the carbon compound. Initially, carbon compounds were named simply that are the common name used today। पहले हम कॉमन नेम यूज करते थे लेकिन कॉमन नेम की संख्या बढ़ गई, इसमें कंफ्यूजन होता था, इसलिए हम आईयूपीएसी नेम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो चार्ट है, ये चार्ट हमें याद रखना चाहिए। तो CH4 एक कार्बन वाला, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सबको को याद होगा अभी। इसकी रिवीजन बहुत ज्यादा करवाई हमने। अगर किसी को नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हैं। सबने वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा अभी। नाउ वी टर्न्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन एंड आंसर्स। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अ साइंटिस्ट हैड फाउंड द कंपाउंड एंड हैड नेम इट मिथीन। साइंटिस्ट को एक कंपाउंड मिला और इसका नाम उसने रखा मिथीन, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय हिज सीनियर। स्टेट द रीजन। एक साइंटिस्ट ने कंपाउंड ढूंढ के निकाला, उसका नाम मीथेन रखा, लेकिन उसका जो सीनियर साइंटिस्ट था उसने उस नाम को रिफ्यूज कर दिया कि ये आपका गलत है। इसका रीजन क्या हो सकता है? It cannot form double bond. Very good. It cannot form the double bond because the methane is the compounds which contains only a single bond। मीथेन में क्या होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ कार्बन। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट्स, एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। देयरफॉर द मिथीन और मिथाइन, मिथीन एंड मिथाइन, ये दो कंपाउंड्स तैयार नहीं होते हैं।
गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following in carbon chain of the concerned compound contain triple bond। इसमें से कंपाउंड फाइंड आउट करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। Propane. D D option. propane sir. D sir. डी आंसर इज राइट, प्रोपाइन, वेरी गुड। Propine has the triple covalent bond in between the two carbon atoms. What was the purpose of putting IUPAC nomenclature? IUPAC nomenclature का मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। Establish common standard of naming compounds. वेरी गुड, ये इज राइट आंसर। क्योंकि जैसे हमने आइसोमेरिज्म में देखा है कि जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एटम की संख्या कंपाउंड्स के अंदर बढ़ती है तो उनके पॉसिबल स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं। जैसे पहले नाम दिया था एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, देन नियो, तो फिर ये कंफ्यूजन बढ़ते जा रहा था। इसकी वजह से आईयूपीएसी नेमिंग ये कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम है और दिस नेम्स आर यूज वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में ये नेम्स जो है ये यूज किए जाते हैं। Which group does methanol belongs to? Alcohol sir. D Alcohol. alcohol. Very good. Alcohol. अच्छी पढ़ाई, वेरी गुड। अब देखिए, द रिसर्चर्स नीड्स टू पुट सफिक्स इन द पेरेंट नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड है, इसमें सफिक्स हमें ऐड करना है कंटेनिंग द 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड से, तो सफिक्स क्या होगा हमारा? YNE. A sir. A. ON. वेरी गुड, YNE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब यहाँ पे एक है, इसका आईयूपीएसी नेम आपको फाइंड आउट करना है। Sir C pentine. Pentine is the wrong answer. If you observe, here is the double bond. डबल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स यूज Option करते B. हैं। Pentene. Pentene. Pentene sir. Second option. हाँ, अब देखिए पेंटिन में आईयूपीएसी नेम जो है, यहाँ पे आईयूपीएसी नेम हम पेंटिन के लिए जब यूज करते हैं, पेंटिन, पेंटिन का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बता सकता है? C5H10। H10, वेरी गुड। अब यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 1 2 3 4 एंड CH3। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा हमारा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। Then possible structure will be CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब हमारे कितने कम? 3। अब तीनों के नेम सेम है। दिस इज द पेंटिंग, इसका आईयूपीएसी नेम होगा हमारा। हाँ, इसमें हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, और इसे नाम भी हमें देना है। पहले 2 कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमें लीस्ट नंबर इसमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा पेंट 1 EN। अब यहाँ पे हम नेमिंग देते हैं तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से हमें स्टार्ट करने 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में आता है। इफ वी स्टार्ट द नेमिंग टू द कार्बन एटम फ्रॉम राइट साइड, then it will the double bond it is exist between 1 2 3 and 4। 3 और 4 तीसरे और चौथे कार्बन एटम के बीच में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इस तरह से नेमिंग करते हैं राइट हैंड से 1 2 3 4 5, तो ये हमारा कार्बन एटम का जो नंबरिंग है ये रॉन्ग हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम के बीच में। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से करेक्ट होगा इस कंपाउंड के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में आता है। और इसमें से लीस्ट कार्बन एटम नंबर हमें आईयूपीएसी नेम में एक्सप्लेन करना है। तो लीस्ट कार्बन एटम क्या है? 2, तो इसका नाम होगा हमारा
पेंट टू ENA, इट इज द करेक्ट IUPAC नेम। अब थर्ड कंपाउंड जो है इसमें बताइए आप जो है नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या राइट हैंड साइड से करेंगे? Right. Right आई answer. वांट क्विक आंसर। राइट हैंड Right साइड hand. से, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि राइट हैंड साइड से अगर हम नेमिंग नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। नाउ द डबल बॉन्ड इज एग्जिस्ट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। अब इसका IUPAC नेम बताइए मुझे। Pen to E. पेंट To टू E. ENE। ओके, इस तरह से हमें IUPAC नेम्स जो है वो देना है। समझ में आया? अंडरस्टैंड? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। The carbon chain of concerned compound contain triple bond. The ending of the parent name will be triple bond है तो end क्या होगा YNE. हमारा? Options. YNE. Why any three option? Which of the following is the first step in IUPAC nomenclature? IUPAC nomenclature में सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए हमें हमारी? Determine the root name of this parent chain. वेरी गुड। पहले तो हमें सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कंपाउंड के फाइंड आउट करने हैं। जितने कार्बन एटम है उस कार्बन एटम से पेरेंट नेम हमारा तैयार होगा जिसे हम रूट नेम कहते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप लोग? सेकंड स्टेप क्या होगा? पहले तो हमने पेरेंट नेम को फाइंड आउट किया है तो सेकंड स्टेप क्या होगी Count हमारी? the number of total bonds. Count the number. हाँ, कार्बन एटम को नंबरिंग देके उसके पहले हमें फाइंड आउट करना है फंक्शनल ग्रुप। विच इज द फंक्शनल ग्रुप? अब फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप है। याद रखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। और इसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइंस है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद विच कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? चूज एप्रोप्रिएट सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स हम प्रीफिक्स टू विच फंक्शनल ग्रुप वी यूज द प्रीफिक्स? Halogen. Halogen group. हैलोजन। वेरी गुड। अगर हैलोजन को छोड़ के अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वी हैव टू यूज सफिक्स। तो ये हमें याद होना चाहिए। द कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन इज नोन एज। जिस Carbon कंपाउंड के compound. अंदर कार्बन है उसे हम क्या कहते हैं? Carbon compound. कार्बन कंपाउंड। एंड कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbon. अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द IUPAC। चार कार्बन Option D. Butane. Butane. वेरी गुड। Butane. गुड। अभी ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी रिवीजन करते हैं हम। क्योंकि ये पार्ट हमारा पूरी तरह से बेस हमारा पक्का होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स का। What are functional groups and homologous series? Today we use several items like pencil, एक मिनट थोड़ा रिफ्रेश कर दो। dry cells, diamond, etc.
What are functional groups and homologous series? Homologous series क्या है? Homologous series is the series in which the compounds contain the same general formula with a same functional group. इसे हम homologous series कहते हैं। तो कोई जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर सभी कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला एक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, तो इसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी। जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे आपको कैनवास पे एक्सप्लेन करता हूँ। होमोलॉगस सीरीज, जैसे हम तीन होमोलॉगस सीरीज के बारे में पहले ही जानते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये तीनों होमोलॉगस सीरीज के बारे में जानते हैं। तीनों का जनरल फार्मूला, अल्केन इज द होमोलॉगस सीरीज हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन ये होमोलॉगस सीरीज है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्काइन इज द होमोलॉगस सीरीज having the general formula CnH2n-2। These three are the homologous series। क्योंकि अल्केन में हम कोई भी एग्जांपल लेंगे तो इसका फार्मूला तैयार होता है इसी जनरल फार्मूले से। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि द कंसेक्यूटिव नंबर और द two consecutive members of the series having the same general formula but they are differ by one CH2 unit। तो इन दोनों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे प्रोपेन C3H8 और उसका कॉन्जिक्यूटिव मेंबर क्या है C4H10। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है इट इज द डिफरेंस ऑफ वन CH2 यूनिट। एक CH2 यूनिट अगर हम प्रोपेन में ऐड करते हैं, प्रोपेन में अगर हम एक CH2 यूनिट ऐड करते हैं तो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो वन CH2 यूनिट मींस द डिफरेंस ऑफ 14 डाल्टन एटॉमिक मास। तो इन दोनों के एटॉमिक मास में कितना फर्क है 14 डाल्टन का। जैसे कि CH4 कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और 4 कार्बन एटम का होता है 12 CH2 यूनिट है ना, तो दो का हाइड्रोजन एटम का 2, तो 12+2 14 इसमें एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है 14 डाल्टन का। ये पॉइंट हमें याद रखना है। देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें ग्रेडेशन मिलता है। जैसे कि कार्बन एटम्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो स्लोली देयर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये प्रॉपर्टीज जो है इसमें हमें डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन दे आर इंक्रीज और डिक्रीज, दे आर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज व्हाइल गोइंग थ्रू द सीरीज। सीरीज में हम ऊपर से नीचे जाएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे, तो इसमें जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन दिखाई देता है। एक तो इंक्रीज होती है या स्लोली डिक्रीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, they are same as they have the same general formula and same functional group। इन सबका फंक्शनल ग्रुप एक होता है, इसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इसमें हम होमोलॉगस सीरीज और भी तैयार कर सकते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज। अब अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, कोई बता सकता है मुझे? कल हमने एक्सप्लेन किया था जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल।
OH. No, no, general. OH. I am asking the general. No. Journal. CnH2n minus 1. Minus. Yes. Right. Repeat again. Cn CnH2n minus OH. H2n plus 1 Minus H. Okay. Cn H2n plus 1 H. Minus nahi. This is not a sign for the minus. We have attached the OH group to this general formula. ये जो general formula है इसे हमने क्या किया है, OH group को attach किया है. And this functional group जो है CN H2n plus 1, इसे हम कहते हैं अल्कील ग्रुप. क्या कहते हैं? अल्कील. तो इसमें हम एक कार्बन एटम वाला अगर कंपाउंड तैयार करेंगे तो CH3, यहाँ पे वैलेंसी एम्प्टी रहती है, मिथिल. ओके. C2H5 इथिल. इफ वी अटैच, ये है अल्कील ग्रुप. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कील. अब इस अल्कील ग्रुप को अगर हम OH ऐड करते हैं, CnH2n plus 1 OH. Now it forms the general formula for alcohol. General formula for alcohol. अब देखिए ये मिथिल ग्रुप है, इसको हमने OH ग्रुप ऐड किया, CH थ्रू OH, मिथिल अल्कोहल. देन C2H5 means CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपिल अल्कोहल. तो इस तरह से हमारी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज तैयार होती है. कॉन्जिक्यूटिव मेंबर सेम है, कोई भी होमोलॉगस सीरीज लीजिए, इसमें प्रॉपर्टीज सेम है. दो होमोलॉगस, दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है. they are showing the gradation in their physical properties and having the same chemical properties. Chemical properties क्यों same है? Because they are having the same general formula and same functional group. इस तरह से हम बाकी members के homologous series तैयार कर सकते हैं, अल्कोहल की, अल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, इस तरह से. ओके. What are the functional groups of carbon compounds? Most of us enjoy a strong bond with our immediate family. In addition, we are often fond of people outside the family, such as our friends or neighbors. Form strong bonds with other carbons as elements. Which all elements of groups can form a bond with carbon? Let's find out. One hydrogen atom of this molecule or यहाँ मैं general names carbonyl. Carbonyl is the ketone group. NH2 amino is the amine group. H oxyl group is oxalic acid. what do we call such a group? We call such a group or atom a functional group. Examples of functional groups: carboxyl, aldehyde, ketone, and Yes, any problem? let's look at the carboxylic acid functional group. A carboxylic acid group contains a carbon atom that is doubly bonded to an oxygen atom and singly bonded to an OH group molecule. Alcohol is another functional group which attaches itself to the carbon chain. It is composed of one hydrogen atom and one oxygen atom. What about the carbonyl compounds? The carbonyl group compounds have a carbon atom bonded to an oxygen atom by a double bond. Carbonyl group compounds can be further classified as aldehydes and ketones. कार्बोनिल ग्रुप जो है
जैसे हमने CO ग्रुप को देखा था, इसके दो पार्ट्स होते हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, CHO एंड C डबल बॉन्ड। In aldehydes, the hydrogen atom is replaced by a molecule of the CHO group. In ketones, the hydrogen atom is replaced by a molecule of the CO group. Look at the functional groups we just examined. Can you identify what they have in common? Correct. They all have oxygen in common. Next, we come to the last functional group for now, the haloalkanes. In haloalkanes, heteroatoms like chlorine, bromine, fluorine, and iodine replace the hydrogen atom in hydrocarbons. Let us summarize. अब देखिए फंक्शनल ग्रुप, व्हाट डू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप हम किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप दैट इज द एटम जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स में अटैच होते हैं, दैट एटम्स आर कॉल्ड एज हेटेरो एटम्स। उस एटम को क्या कहते हैं? हेटेरो एटम्स। इट मे बी द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इट मे बी द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे OH, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम, वन इज ऑक्सीजन एंड अनदर इज द हाइड्रोजन। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is attached to the hydrocarbon by replacing one of the hydrogen from the compounds to form a new compounds with a new property is called as functional group. Now the functional group decides the properties of that compound. जब हाइड्रोकार्बन्स को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के अनुसार इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स, तो पता है हाइड्रोजन और कार्बन। ईच फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम टू जॉइन इटसेल्फ द कार्बन चेन। कार्बन हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है और वहां पे ये ग्रुप अटैच होता है जिसे हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड्स, कीटोन और हैलोजन। इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप से जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। और अभी देखो 3 मिनट के अंदर हमारा क्लास स्टॉप होगा, लेकिन हम वी विल कंटिन्यू दिस। 20 मिनट्स की लिंक आएगी, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। What is meant by homologous series? How does a librarian locate a particular book in a library with thousands of books? How does a pharmacist locate medicines from among the thousands of medicines in his shop? Any guesses? The books in a library are typically organized by subject. Further, within each subject, the books may be arranged by author name or title. Similarly, a pharmacist will organize the medicines in his shop in a way that makes it easy to locate individual medicines. Have you ever wondered how scientists study so many different compounds? Let's explore this together. There are so many organic compounds around us that it is tough to remember them all. Wouldn't it be easier to identify and study them if they were classified like books or medicines? The question is, how do we classify different compounds? We classify compounds into groups or families such that all the members of a particular group or family have the same functional group. A homologous series is a group of hydrocarbons in which the same functional group substitutes the hydrogen atom. Examples of homologous series include alkanes, alkenes, alkynes, and alcohols. Let's examine each one in a little more detail. Compounds like methane, ethane, propane, and butane occur in succession. That is, one methane group keeps getting added in the chain. Why do we say these molecules appear in succession?
To understand this better, take the molecular formula of methane, which is CH4, and add CH2 to it. We get CH3 bond CH3, that is C2H6 for ethane. One methyl group gets added to methane and forms ethane. So ethane succeeds methane. Similarly, when we add CH2 to ethane, we get CH3, CH2, CH3. That is C3H8, which is the molecular formula for propane. So propane succeeds ethane. In the same way, adding CH2 to propane gives butane. So we say that these molecules are in succession and belong to the same series. Notice that these alkanes, that is methane, ethane, propane, and butane, all have the same molecular structure with added methyl CH2 group each. Therefore,